Hello student, welcome to my fifth lecture on engineering mechanics. This is the section which I have started in GATE 2021 lecture series, which our college, that is Prestige Institute of Engineering Management and Research, has started. Our Department of Mechanical Engineering, myself Professor Hemant Sharma. As you all know that we have started the GATE series, in which I am taking the section 2, that is Applied Mechanics and Design. And the module is engineering mechanics. As you all know that the module consists of various topics in the syllabus, that is free body diagram and equilibrium. Student, this is my fifth lecture, and this fifth lecture, in my fifth lecture, the free body diagram and equilibrium topic will be completed. आपका जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा 6th लेक्चर, वो ऑनलाइन लेक्चर रहेगा, डाउट सेशन रहेगा. उसमें आपको जितना भी अभी टॉपिक्स अभी 5 लेक्चर में कवर हुए हैं, that I will be solving your doubts in that lecture. Trusses and frames, thereafter we will start in next lectures. Virtual work, kinematics and dynamics, impulse and momentum. So student, this is my fifth lecture on the topic that is Lamis Theorem. In this Lamis Theorem, we have already seen the theoretical part, that what is the Lamis Theorem. अब जो है हम Lamis Theorem में जो numerical part बचा हुआ है, that I will be covering in today's lecture. Okay students, so let us start with the Lamis Theorem. जैसा कि आप देख सकते हो कि Lamis Theorem हमने already last lecture में देख चुके हैं कि Lamis Theorem क्या होता है. Lamis Theorem is applicable to coplanar forces and as well as co-concurrent forces. Concurrent forces मालूम है आपको, दो more than two or more than two forces acting on a one point, single point. मतलब उनका they are originating from one single point. And what is coplanar forces? Two or more than two forces acting on one plane are known as coplanar forces. For example, Lamis theorem में हम जो है, there are three forces P, Q and R, and Lamis theorem is applicable for equilibrium of forces. एक बार मैं statement पढ़ता हूँ, already हम देख चुके हैं already. If three coplanar forces acting at a point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two. Mathematically, P upon sin alpha is equal to Q upon sin beta is equal to R upon sin gamma. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, P, Q and R, एक पॉइंट पर. P जो फोर्स है उसका अपोजिट एंगल, मतलब उसके दो अपोजिट जो बचे हुए दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल अल्फा है, Q का अपोजिट एंगल बीटा है, R का अपोजिट एंगल गामा है. तब ये लामिस थ्योरम हम लगा सकते हैं. स्टूडेंट जो है यहाँ पर आपको जो है लामिस थ्योरम का डेरिवेशन दिया हुआ है. वी आर नॉट कंसर्न विद द डेरिवेशन पार्ट, वी आर ओनली कंसर्न विद द फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन इन द गेट क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ दो क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में, और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा करने के लिए. यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड ट्राई योरसेल्फ. और जो हमारा लेक्चर रहेगा, 6th लेक्चर ऑनलाइन डाउट्स क्लियरिंग सेशन रहेगा, उसमें आप जितने भी आपके डाउट्स होते हैं 1st to 5th लेक्चर में, वो सब आप जो है उस क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. ओके, तो आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल 5.1 जो गिवन है, वो आपको मैंने आपको बताया लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि लैंग्वेज जो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें आपको पूरा जो है लैंग्वेज आना चाहिए कि क्या गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना आना चाहिए, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम. तो आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर जिसका वेट 15 न्यूटन दिया हुआ है नीचे, तो 15 न्यूटन तो वेट तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है ना. हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट सी पॉइंट से हैंग कर रहा है, और दो स्ट्रिंग के द्वारा एसी और बीसी के द्वारा जो है वो हैंग कर रहा है. इसका मतलब एक एसी स्ट्रिंग ऊपर सीलिंग पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक स्ट्रिंग सीबी जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है वॉल के साथ में. तो स्ट्रिंग लिया हुआ है यहाँ पर, और अब आपको लामिस थ्योरम को अप्लाई करके स्ट्रिंग बीसी और स्ट्रिंग एसी पर लगने वाला लोड या फोर्स, बोले अपन फोर्स निकालना है, जो कि टेंसाइल फोर्स होगा, मे बी टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स, अभी हम देखेंगे. सो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो डायग्राम दिया हुआ था, है ना, वॉल, सीलिंग, फैन, ये अपना लाइट पिक्चर और ये सब स्ट्रिंग दे रखी थी, तो हम जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है सब जितने भी ऑब्जेक्ट से हटा दो, जो स्ट्रिंग्स है उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो तीन फोर्सेस जो है बना दो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम, तीनों फोर्सेस और उन दो फोर्सेस के बीच के एंगल्स. तो ये एंगल्स जो देख सकते हो 45 डिग्री एंगल यहाँ था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में. ज्योमेट्री लगेगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल लग सकता है, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स लग सकता है. तो ये सब आपको ज्योमेट्री के
एंगल ट्रांसफर करने का तरीका आना चाहिए। 45 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ आ जाएगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं मैं, और ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो इधर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये 60 डिग्री यहाँ आ गया, यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये 90 प्लस 60 150 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पर आएगा तो 90 प्लस 45 135 डिग्री, और बचा हुआ एंगल 75 डिग्री होगा। ये दो एंगल यदि निकल जाते हैं तो 360 में से माइनस कर दो दोनों एंगल का सम करके, तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल आ जाएगा। अब आप देख सकते हो आपकी ये 15 न्यूटन था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो लॉजिकली हमें पता चल जाता है कि ये इसमें खिंचाव होगा कि दबाव होगा, मतलब टेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा। उसके आधार पे आप बता सकते हो कि BC जो है, BC से B की तरफ, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन लेना है क्योंकि टेंशन है, इसमें खिंचाव होगा। C से A की तरफ डायरेक्शन लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम में जो पॉइंट जो होता है कॉन्फ्रेंट पॉइंट, वहां से यदि अगर हम स्ट्रिंग में टेंशन मान रहे तो अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाएगा एरो, और कॉम्प्रेशन मान रहे तो अंदर की तरफ। हम जो है एरो कुछ भी ले सकते हैं। अगर टेंशन लिया है और आंसर हमारा सॉल्व करने पर टेंशन TBC के लिए नेगेटिव आती है तो हम उसको साइन को, डायरेक्शंस को पलट देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हमने तीनों फोर्सेस लिख दिए यहाँ पर, TAC और TBC और 50 न्यूटन, और उनके दो दो फोर्सेस के बीच के एंगल तब आप लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 न्यूटन का फोर्स के अपोजिट एंगल 75 है, इसलिए 15 अपॉन साइन 75, TAC अपॉन साइन 135 और TBC अपॉन साइन 150, ये हमारा जो है लामिस थ्योरम अप्लाई करा। एक बार मैंने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया तो TAC की वैल्यू निकल गई 10.98 न्यूटन, और एक बार मैंने 15 अपॉन साइन 75 को TBC अपॉन साइन 150 से इक्वेट किया तो TBC की वैल्यू निकल जाएगी 7.76। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। देख सकते हो आप कि एग्जांपल 5.2, अ स्ट्रिंग ABCD अटैच्ड टू अ फिक्स पॉइंट A एंड D। A और D पॉइंट पर दो एक स्ट्रिंग है ABCD, तो देखा है तो तीन पार्ट में, वो AB एक स्ट्रिंग, BC एक स्ट्रिंग और CD एक स्ट्रिंग, और वो A और D पॉइंट पर जो है अटैच्ड है ऊपर। ठीक है, और स्ट्रिंग के B पॉइंट पर एक 1000 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, स्ट्रिंग के C पॉइंट पर 1000 न्यूटन का लोड लगा हुआ है। और देख सकते हो कि AB का वर्टिकल के साथ में एंगल 30 डिग्री है, ये यहाँ पर एक 120 डिग्री का एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ में ये स्ट्रिंग BC का, और एक देख सकते हो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है स्ट्रिंग CD का वर्टिकल के साथ में। अब आपको एक्चुअल में क्या करना है कि इसमें आपको सॉल्व लामिस थ्योरम अप्लाई करके AB, BC और CD जो स्ट्रिंग्स है उनमें जो भी टेंशन हो या कंप्रेशन, वो जो फोर्स है वो निकालना है आपको इन द फॉर्म ऑफ टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स विच एवर इज एप्लीकेबल। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम जा रहे हैं कि जो मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो डायग्राम पार्ट है, ठीक है ना, उसको हम B पॉइंट और C पॉइंट पर यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कर दें तो आप देख सकते हो कि AB स्ट्रिंग BC स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई मैंने, और 1000 न्यूटन का लोड नीचे है, और दोनों स्ट्रिंग्स में मैंने टेंसाइल माना है। अगर टेंसाइल, अभी मान लेते हैं टेंसाइल, और अगर सॉल्व करने पर किसी भी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसकी डायरेक्शन हम अपोजिट कर देंगे, मतलब टेंसाइल की जगह कॉम्प्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और BC पॉइंट पर भी ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और तीनों फोर्सेस को यहाँ पर जो है एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल या अल्टरनेट एंगल्स के सहायता से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारे तीन एंगल्स 120 120 120 आ जाएंगे। यहाँ पर तीन एंगल्स जो है, एक तो 120 प्लस 30 150, और 180 माइनस 120 60 डिग्री, और बचा हुआ जो है अगर एंगल निकालना है तो 360 में से माइनस कर दो 150 माइनस 60, तो 150 आ जाएगा यहाँ पर। और C पॉइंट पर जो एंगल्स है वो 120 120 120 ईच आ रहे हैं। अब यहाँ एक लॉजिक भी काम करता है यहाँ पर कि यदि तीन फोर्सेस, तीन एंगल्स यदि अल्फा बीटा गामा 120 डिग्री है, इक्वल है मतलब, तो तीनों फोर्सेस भी इक्वल होंगे तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब PQR भी इक्वल होंगे। अब सबसे पहले B पॉइंट पर हम सॉल्व करेंगे। TAB नहीं पता, TBC नहीं पता, लेकिन उनके अपोजिट एंगल्स पता है, तो ये पहला फॉर्मूला B पॉइंट पर हमने अप्लाई करा, लामिस थ्योरम एट जॉइंट B। तो TAB upon 60 is equal to TBC upon 150 is equal to 1000 upon sin of 150। सॉल्व करेंगे, TAB की वैल्यू 1732 न्यूटन आ जाएगी, TBC की वैल्यू 1000 न्यूटन आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि TBC की वैल्यू 1000 न्यूटन। अब B पॉइंट पर जब B जॉइंट पर सॉल्व करते हैं तो टेंशन है, तो TBC बाहर की तरफ, और ये जो एक स्ट्रिंग जो है BC जो है, लॉजिक ये है कि स्ट्रिंग BC यदि इक्विलिब्रियम में है तो B से यदि जो साइन जो भी जा रहा है बाहर की तरफ, तो C पॉइंट पर भी साइन जाएगा बाहर की तरफ। तो जब जॉइंट C को ज्वाइन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो BC हम वहां पे बनाएंगे, लेकिन यहाँ 20
टेंशन, चूंकि बीसी में टेंशन है इसलिए बी से बी जॉइंट पर एरो बाहर की तरफ होगा और सी जॉइंट पर भी एरो बाहर की तरफ होगा। तो ये इसका हमारा लॉजिक से है ना। तो बीसी पर टी बीसी के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1000, ये भी 1000 है, और वैसे तो खैर सीडी भी 1000 होगा, लेकिन फिर भी हम यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट जॉइंट सी, तो टी बीसी अपॉन sin 120 इज इक्वल टू टी सीडी अपॉन sin 120 इज इक्वल टू 1000 अपॉन sin 120। तो सॉल्व करने पर sin 120 कैंसिल आउट हो रहे हैं और टी सीडी की वैल्यू 1000 न्यूटन आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको इलैबोरेट किए। एग्जांपल 5.3 आपको खुद को सॉल्व करके देखना है, और उसके बाद जो है कुछ 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं वो भी आपको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 5.1। जो भी आपको प्रॉब्लम्स इसमें डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाता है ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये पूरे क्वेश्चंस जो है वो जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करवा दूंगा। तो ये 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज माय लेक्चर नंबर 5 सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। और ये आपका जो है अभी पहला पार्ट हो गया है फोर्सेस एंड देयर इक्विलिब्रियम। और इसमें अब जो भी डाउट्स होगा तो नेक्स्ट डाउट सेशन में आपको पूछना है। ये हमारी ऑनलाइन क्लास रहेगी, और उसके बाद हम जो है ट्रसेस और फ्रेम्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन नेक्स्ट मीटिंग।